Hello students, welcome to all in the social science class. Dear students, in previous module we have discussed about the governance during the Sultanate period. Today in this module we are going to discuss about the society, economy, religion, language, literature, art and architecture. So let's start with society. If we talk about the Indian society during Sultanate period, the society was divided into two classes, that is Hindus and Muslims. Muslims were the ruling class and were divided into two sects, that is Sunni and Shia. During Sultanate period, slavery became very popular and it is said that Firoz Tughlaq had 1,80,000 slaves under his control. बेटा सल्तनत पीरियड में इंडियन सोसाइटी टू क्लासेस में डिवाइडेड थी, हिंदू और मुस्लिम. मुस्लिम्स रूलिंग क्लास में थे, मीन्स मुस्लिम रूलर्स थे और उन्हें दो संप्रदाय में डिवाइड किया गया था, सुन्नी और शिया. सल्तनत पीरियड में स्लेवरी बहुत पॉपुलर थी, मीन्स लोगों को दास बनाकर रखा जाता था. ये भी कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के कंट्रोल में 1,80,000 स्लेव्स थे. डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन, देन वी कैन से दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन was not good during Sultanate period. Polygamy was common in Muslims and they kept more than one wife. Muslims widows were allowed to remarry, but in Hindu society, widow remarriage was not allowed. So we can say that in both Hindus and Muslims, the condition of women was quite miserable. मीन्स सल्तनत पीरियड में वुमेन की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. पॉलीगेमी यानी एक से ज़्यादा मैरिज मुस्लिम में कॉमन सी बात थी, वो एक से ज़्यादा वाइफ्स रखते थे. मुस्लिम्स विडोज़ को रीमैरिज करने की परमिशन तो थी, बट हिंदू सोसाइटी में विडोज़ को यानी विधवाओं को रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी. मीन्स सल्तनत पीरियड में हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुमेन की कंडीशंस बहुत ही दयनीय थी. Hindus were in majority in the country but were economically very backward. Hindus were not given high post in the Sultanate period. Hindu society were based on caste system. The people of lower classes were overlooked and exploited both by the higher classes of Hindus and Muslims. यानी कंट्री में हिंदू मेजॉरिटी में थे बट इकोनॉमिकली उनकी पोजीशन बहुत ही बैकवर्ड थी. हिंदूज को सल्तनत पीरियड में कोई हाई पोस्ट नहीं दी गई थी. हिंदू सोसाइटी कास्ट सिस्टम पर बेस्ड थी. लोअर क्लासेस अर्थात निम्न वर्गों के लोगों को हिंदूज एंड मुस्लिम्स की हायर क्लासेस यानी उच्च वर्गों के लोगों ने अनदेखा किया और उनका खूब शोषण किया. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट हिंदूज वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड वर नॉट रिस्पेक्टेड ड्यूरिंग द Sultanate period. This led to widespread conversion to Islam. In simple word, we can say that a large number of Hindus changed their religion and become Muslims. Hindu society was suffering from many social evils like sati system, means the woman whose husband was died have to burn himself alive along with her husband. Child marriage was common. Widows were not allowed to remarry. Even women and girls were not allowed to get education. Intercaste marriages were also not allowed because of caste rigidity. Means Hindus economically backward थे, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी और सल्तनत पीरियड में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उनका कोई सम्मान नहीं था. इसी वजह से हिंदूज इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से हिंदूज ने अपना धर्म बदल लिया और मुसलमान बन गए. हिंदू सोसाइटी में कई सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती सिस्टम,
सती सिस्टम का मतलब उन वुमेन से है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन्हें अपने हस्बैंड के साथ साथ खुद को जिंदा जलना पड़ता था। विडोज यानी विधवाओं को रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी। इवन वुमेन एंड गर्ल्स को एजुकेशन लेने की भी परमिशन नहीं थी। कास्ट रिजिडिटी यानी जातिगत कठोरता के कारण इंटरकास्ट मैरिज को भी अलाउ नहीं किया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द इकोनॉमी and economic condition of the people. If we talk about the economic condition of the people, then we can say that particularly Hindus were economically backward. As I have told you that they were not given high post and overlooked by the rich Muslims. Most of the people practiced agriculture, and agriculture was mainly dependent on rains, canals and wells were used for irrigation. Muslim rulers Firoj Tughlaq constructed many canals for irrigation which proved helpful for agriculture. In spite of all these efforts, the farmers led a life of misery. They were living in poverty. यानी सल्तनत पीरियड में मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था और एग्रीकल्चर मेनली रेन्स, कैनाल्स एंड वेल्स पर डिपेंडेंट होती थी और इसका यूज़ इरिगेशन के लिए ही किया जाता था। मुस्लिम रूलर फिरोज तुगलक ने इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही। इन सभी एफर्ट्स के बावजूद भी फार्मर्स की कंडीशन बहुत दयनीय थी और वो गरीबी का जीवन जी रहे थे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, देन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वर स्पिनिंग, weaving, sugar production, handicraft, pottery and jewelry making. Dear students, there were some sultans who patronized art and craft, means they provided grants and aid for the development of art and craft. Sultans had their own karkhanas. The fancy and luxury goods were manufactured for the royal family. During this period, India had advanced internal and foreign trade. Trade was carried on by both sea and land routes. The main items of exports were rice, spices, indigo, textile, silk and sandalwood. India imported horses, wine, high-grade textile, ग्लासवेयर एंड रॉ सिल्क ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। यानी सल्तनत पीरियड में कुछ ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट को संरक्षित किया था। मीन्स वो आर्ट एंड क्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए अनुदान और सहायता भी प्रदान करते थे। सुल्तान के पास अपने खुद के भी कारखाने थे जो रॉयल फैमिलीज के लिए फैंसी और लग्जरी गुड्स के लिए का मैन्युफैक्चर करवाते थे। और इस टाइम में इंडिया का इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। मीन्स देश के अंदर और बाहर देशों के साथ व्यापार बहुत ही उन्नत था। ट्रेड सी रूट्स और लैंड रूट्स दोनों ही रूट्स के थ्रू किया जाता था। एक्सपोर्ट्स के आइटम यानी इंडिया राइस, स्पाइसेस यानी मसाले, इंडिगो मीन्स नील, टेक्सटाइल्स, सिल्क और सैंडलवुड यानी चंदन आदि का भी निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था। और हॉर्सेस, वाइन और जो है हाई क्वालिटी क्लोथ्स, कांच से बनी हुई गुड्स और रा सिल्क का जो है आयात करता था यानी इंपोर्ट करता था। इट मीन्स वो दूसरे देशों से ये सब चीज़ें मंगवाता था। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट रिलीजन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड Hinduism was the dominant religion as Hindus were in majority. The Hindus followed Vaishnavism and Shaivism. Some Hindus also followed Jainism and Buddhism. Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori brought Islam in India. The Muslims believed in one God, whereas Hindus worshipped many gods. Some of the important movements like Bhakti movement
एंड सूफीज़म स्टार्टेड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। यानी सल्तनत पीरियड में हिंदुज़म एक डोमिनेंट रिलीजन था, यानी हिंदू धर्म का प्रभुत्व था, क्योंकि हिंदुओं की ही संख्या ज़्यादा थी। हिंदूज में वैष्णविज्म और शैविज्म को फॉलो किया और कुछ हिंदूज ने जैनिज्म और बुद्धिज़्म को भी फॉलो किया। फिर महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने इंडिया में इस्लाम धर्म को फैलाया। मुस्लिम्स एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, मीन्स दे बिलीव्ड इन वन गॉड, बट हिंदूज कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। और सल्तनत पीरियड में भक्ति एंड सूफी कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट भी उसी टाइम में स्टार्ट हुए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, then the literary language for prose and poetry was Khadi Boli and Braj Bhasha. Prose and poetries were written in these languages. And if we talk about the Muslim communities, then the Muslims used a mixture of Persian and Arabic language in their court. One of the most important contribution of Sultanate period was the introduction of historical literature, means the histories began to be written. यानी प्रोज और पोइट्रीज यानी गद्य और कविता के लिए लिटरेरी लैंग्वेज खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। इन लैंग्वेजेस में गद्य और कविताएं यानी प्रोज और पोइट्री लिखी गई। मुस्लिम कम्युनिटीज़ अपने दरबार में फ़ारसी और अरबी दोनों भाषाएं बोलते थे, यानी पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज का मिक्सचर। सल्तनत पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड हिस्ट्री ऑफ रूलर्स बिगेन टू बी रिटन। अ फेमस हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी wrote Tariq-e-Firoz Shahi. The well-known literary figure and most genius of this period was Amir Khusro. He was an outstanding poet as well as music composer and great historians. यानी सल्तनत पीरियड के टाइम रूलर्स की हिस्ट्री लिखी जाने लगी। एक फेमस हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक-ए-फिरोज शाही लिखी और इस टाइम के जो सबसे फेमस साहित्यकार यानी लिटरेरी फिगर और सबसे प्रतिभाशाली पर्सन थे वो कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक अच्छे कवि होने के साथ साथ एक संगीतकार और एक महान इतिहासकार भी थे। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड द लोकल लैंग्वेजेस वर बंगाली एंड गुजराती यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। लोकल लैंग्वेज वाज द मीडियम ऑफ प्रीचिंग्स फॉर भक्ति एंड सूफी सेंट्स। A new language was also developed during this period, which was a mixture of Turkish and Hindi. So what was that language? It was Urdu. Many great Indian classics were translated in Persian, Turkish and other languages. सल्तनत पीरियड में इंडिया के कई पार्ट्स में बंगाली और गुजराती लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। लोकल लैंग्वेज भक्ति और सूफी संतों के प्रचार का एक माध्यम थी और इस टाइम में एक नई लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुई और वो लैंग्वेज थी उर्दू। कई ग्रेट क्लासिक्स फारसी, तुर्की और कई दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू गेट नॉलेज अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। During this period, a new style of architecture was developed with the help of Indian craftsmen. This is known as the Indo-Islamic architecture. The monuments that were built during this period has a clear impact of it. When सल्तनत पीरियड में इंडियन क्राफ्ट्समैन की हेल्प से वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल डेवलप किया गया था। इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है और इस पीरियड के टाइम जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उनका एक स्पष्ट प्रभाव आप देख सकते हो जिसमें इंडियन और इस्लामिक दोनों ही कलाओं का मिश्रण है। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देन
Quwait ul Islam Mosque, that is Qutub Masjid, and Qutub Minar in Delhi are the best examples of Indo-Islamic architecture. These were made by the first Sultan of Delhi Sultanate, Qutbuddin Aibak. He died in his young age. Qutub Minar was completed by Iltutmish, यानी कुवैत उल इस्लाम, जिसे कुतुब मस्जिद भी कहते हैं, और दिल्ली में कुतुब मीनार यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू बनाए गए थे और उनकी यंग एज में ही डेथ हो गई थी। सो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के थ्रू कंप्लीट किया गया। अलाउद्दीन खलजी extended the Quwait ul Islam Mosque and built Alai Darwaja near it. It is very decorative and most impressive gateway with an arc. अलाउद्दीन खिलजी ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया और इसके पास ही अलाई दरवाज़ा बनवाया। यह एक आर्क के साथ यानी गुंबद के साथ एक बहुत ही डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे है और यू कैन से प्रवेश द्वार। डियर स्टूडेंट्स, खलजी वांटेड टू बिल्ड अ मीनार इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार, इट्स डबल हाइट, बट ही कुड नॉट कंप्लीट हिज टास्क। डू यू नो व्हाई? As he died at a young age, his dream could not fulfill, so the incomplete construction of Minar can be seen today. Dear students, during Sultanate period, many cities were founded by the rulers. Tughlaq founded many cities like Firozshah Kotla, Firozabad, Tughlaq and Tughlaqabad. The most important and famous monument of Tughlaqs is the Ghiyasuddin Tughlaq tomb. It is octagon in shape, that is, it has 8-sided. This tomb is in front of Tughlaqabad Fort of South Delhi on Mehroli Okhla Road. सल्तनत पीरियड में कई शहरों की स्थापना रूलर्स के थ्रू की गई थी। तुगलक ने कई न्यू सिटीज़ जैसे फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद और तुगलकाबाद की स्थापना की। तुगलक का मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस मोन्यूमेंट गियासुद्दीन तुगलक टोम है और यह ऑक्टागन शेप में है। इट मीन्स इसकी 8 साइड्स हैं। ये टोम यानी मकबरा मेहरोली ओखला रोड पर साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट के सामने है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू गेट अ चांस टू विजिट दिल्ली, देन प्लीज़ सी दीज मोन्यूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट एंड टोम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक. This will enrich your knowledge about the rulers of Sultanate period, and you will also get acquainted with the architecture styles of Sultanate period. Dear students, while visiting Delhi on Lodi Road, you can see the Lodi Garden. These gardens were made by Lodis, who were the last ruler of Delhi Sultanate. So dear students, today in this module, we have got acquainted with vast knowledge of society, economy, religion, language and literature, art and architecture of Delhi Sultanate. When we actually visit Delhi and see all monuments in Delhi, then definitely it will be a great experience for us related to our history, and we can explore much more visiting such historical places in our capital city, Delhi. So with this, our chapter ends. Thank you. Stay happy. Stay blessed.